عید الاضحیٰ پر سپہ سالار اگلے مورچوں پر، فیلڈ مارشل کا ضلع یوب کا دورہ۔ ISPR کے مطابق سید عاصم منیر نے مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا۔ کہا، کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا۔ صفاقانہ اقدام افواج یا قوم کے حوصلے کمزور نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ عید پر ملکی سرحدوں پر دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دینے والے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف کو ٹیلی فون۔ کہا، قوم کو اپنے سپاہیوں کی غیر متسلسل وابستگی اور قربانیوں پر فخر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفز نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا صدر آصف زرداری، اسپیکر قومی اسمبلی اور چاروں وزراء اعلیٰ کو بھی فون عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ایثار اور قربانی کی بہترین مثال عید الاضحیٰ۔ ملک بھر میں عید قربان مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں نماز عید کے اجتماعات۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد، لاہور میں بادشاہی مسجد، دادا دربار، مینار پاکستان اور جامعہ نعیمیہ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ کراچی میں پولو اور ٹی گراؤنڈ میں بڑی تعداد میں شہریوں نے نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے گئے۔ 24 نیوز کی جانب سے ناظرین کو عید مبارک۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید کی روح پرور اجتماعات۔ لاکھوں حجاج کرام اور مقامی لوگوں نے نماز ادا کی۔ امت مسلمہ کے اتحاد و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ خادم الحرمین ارشفین اور ولی عہد محمد بن سلمان کی اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو عید الاضحیٰ پر مبارکباد کے پیغامات۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، ایثار اور احساس ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مادر وطن کے دفاع اور دہشت گردی کے واقعات میں جان قربان کرنے والے شہداء کی قربانی ہمارا قومی فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ پاکستان کو امن، استحکام، اتحاد اور ترقی کی نعمتوں سے ہمیشہ مالا مال رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج ملک میں دیر بام خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ افواج ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی، ایمان اور یکجہتی کی علامت ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور گوشت کی تقسیم کے بعد مرد حضرات کھانے اور خواتین کھلانے میں مصروف۔ بچوں اور بڑوں کی جانب سے طرح طرح کی فرمائشیں۔ ناشتے کے بعد مسالے دار کلیجی سے گھر والوں کی توازو۔ دوپہر کے کھانے میں قورمہ، بریانی اور دیگر پکوانوں سے دسترخوان سجے۔ رات میں رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ تکہ پارٹی کی محفلیں۔ بچوں کا عیدی وصول کرنے کا مشن بھی دن بھر جاری رہا۔ کئی بچے اپنے پیارے جانوروں کے بچھڑنے پر غمزدہ۔ عید قرباں پر گوشت کھانا ہی نہیں، دوسروں کو کھلانا بھی ہے۔ مستحقین میں گوشت کی تقسیم کے بعد دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ جو آج ہیں میزبان وہ کل بنیں گے مہمان، جو آج کھانے کھلا رہے ہیں وہ کل دعوتیں اڑائیں گے۔ طبی ماہرین کا گوشت کے استعمال میں احتیاط کا مشورہ۔ کہا، زیادہ گوشت اور مسالے دار کھانے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کراچی کی گلیوں میں تگڑے بیل ذبح کرنا قصائیوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ ملتان میں بپھرے بیل نے قصائیوں کی دوڑیں لگوا دیں۔ گجرانوالہ میں قصابوں کے نخروں سے تنگ پہلوانوں نے جانور خود قربان کر لیے۔ اکھاڑے میں پہلوانوں کو چت کرنے والے پہلوانوں نے جانور چت کرنے میں بھی دیر نہ لگائی۔
कुर्बानी के गोश्त का कीमा हमसे बनवाएं। कराची में जगह जगह गोश्त का कीमा बनवाने के स्टॉल सज गए। महमूदाबाद में कीमा स्टॉल्स पर रश। लोगों का कहना है कि गोश्त का कीमा बनाकर कबाब खाएंगे। दुकानदार फी किलो 40 रुपए वसूल करने लगे। फैसलाबाद में नान की दुकानों पर रश। सादा, रोगनी और तिल वाले नान की मांग में इजाफा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने शेखुपुरा में अपने आबाई गांव नंगल कसोवाला में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने हवेली कहूटा की जामे मस्जिद अश-शुहदा में ईद की नमाज पढ़ी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से नवाब शाह में सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा भी मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने सदर मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों की आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर के बाग नारान में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आबाई गाँव वाहड़, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। सीनियर वज़ीर सिंध शिरजील मेमन ने टंडो जाम और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज पढ़ी। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का अजीमुल शान इज्तिमा। गजा के मजलूम मुसलमानों ने तबाहाल इमारतों के दरमियान नमाज पढ़ी। तेहरान में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। करबला में लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया, यूरोप, तुर्किया, मिस्र, लिबिया, मलेशिया और अमारात में भी ईद आज मनाई जा रही है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और चीन की मसाजिद में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद का फरीज़ा अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मशरिक़ वुस्ता और ख़ित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का यादा। इसहाक डार की चेक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा से इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दुनिया में पाकिस्तान कौम के पासदार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान की जंग के बायस पूरी दुनिया ख़ुसूसन हमारा खित्ता मुतासर हो रहा है। सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तौर पर भी मुश्किलात हैं। हुकूमत ऐसा बजट लाएगी जिसमें महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ मिलेगा। फ़लस्तीन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी तक पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा। कश्मीर और पानी का मसला हल होने तक भारत से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक से कम है। बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशां हैं। ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में तारीख का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन। पहली मरतबा सफाई की बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज्म फंक्शनल। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल। गलियों और बाजारों में अलाइशें और बाकियात फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक। सुथरा पंजाब के 1,76,000 से ज़ायद वर्कर्स ईद उल अज़हा की खसूसी सफाई ऑपरेशन का हिस्सा। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से किसी ने बात की, ना कोई तरमीम सामने आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। शिरजील मेमन कहते हैं कि कराची को वफाक के हवाले करने की बात मुमकिन ही नहीं। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और रहेगा। 28वीं तरमीम की बातें अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं। इलेक्शन हुए तो बलदियाती तरमीम की बात करने वाले भाग जाएंगे।
कराची किसी की जागीर नहीं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फारूक सत्तार और अली खुर्शीदी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। MQM ने जो हाल शहर का किया वो सबके सामने है। हम प्रोपेगेंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देंगे। अलाइशें उठाने के लिए 3 लैंडफिल साइट्स, 105 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। कभी लाहौर को गलत नहीं कहा, हमेशा कहा लाहौर साडा दिल है। बिलाल यासीन को कोई बात बुरी लगी तो मुआफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक पर धमाके से मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हैं। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में 2 रोज़ से जारी ऑपरेशंस के दौरान 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। जिसे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं वो मुल्क से चला जाए। अवाम सिक्योरिटी हुक्काम से ताउन करें। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती, शिद्दत पसंदी फैलाने और बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयों का मरकज़ बन गया। दहशतगर्द गिरोहों के तौसीफ़ पसंदाना इक़दामात आलमी बरादरी के लिए ख़तरा हैं। रूसी जरीदे टॉस के मुताबिक DGISPR मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी पर आगाह कर चुके हैं। कराची के इलाके सदर में चाइनीज डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर का कातिल दहशतगर्द पकड़ा गया। कराची में CTD और हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। तलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से असलहा, धमाकाखेज मवाद और 8 सेफ्टी फ्यूज बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकद्दमात दर्ज। मुल्क भर में शदीद गर्मी, आइंदा 3 रोज तक सूरज आग उगलेगा। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में शदीद गर्मी, मैदानी इलाकों में पारा 50 डिग्री को छू जाएगा। NDMA ने ग्लेशियर पिघलने से सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दूसरी जानिब सुबह सवेरे इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी समेत पोटोहार के इलाके में हल्की बारिश का इम्कान। यूरोप भी हीट वेव की जद में, कई ममालिक में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड। पेरिस, लंदन और जर्मनी में गैर मामूली गर्मी। फ्रांस में हीट वेव के बायस 7 अफराद हलाक हो गए। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। लंदन और जर्मनी में भी गैर मामूली गर्मी, दर्जा हरारत 34 को छू गया। मनासिके हज का पहला वाजिब वकूफ़े मुज़दलिफ़ा मुकम्मल। हुजाज कराम रमी के लिए जमरात की जानिब रवा दवा। आज बड़े शैतान को कंकरियां मारी गईं। हुजाज कल मिना में क़याम के दौरान ज़वाल के बाद तीनों शैतानों की रमी करेंगे। कुर्बानी की अदायगी और सर मुंडवाकर हाजियों ने एहराम खोल दिए। हज का तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़े ज़ियारत अगले 2 दिन में मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान के लिए वापसी की हज परवासें 31 मई से शुरू होंगी। फौजी महाज पर नाकामी के बाद दुश्मन ईरान को मौशी तौर पर चोट पहुंचाना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से गुफ्तगू। कहा, निजी शोबा फाल होने से मुल्क की मईशत की बुनियाद मजबूत होगी। बैरूनी खतरात और दबाव के मुकाबले में कौमी ताकत में इजाफा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। खराब मौसम के बायस काबीना का कैंप डेविड में होने वाला इजलास मौखर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। ईरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम की अमरीका को मुंतकली का मामला ज़ेर गौर होगा। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड भी इजलास में शिरकत करेंगी। आबला हरमुज में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का एक्सपर्ट ताज़ा बयान। कहा, अमरीकी अफवाज आबला हरमुज में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। उधर अमरीकी फौज की आबला हरमुज में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी जारी है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले 108 जहाज़ों को वापस भेजा गया। ईरान का अमरीका से अफजूदा यूरेनियम और आबना हरमुज पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी का वाज़ेह बयान।
کہا افزودہ یورینیم پر امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ افزودہ یورینیم کا مسئلہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آبنہ ہرمز پر بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران امریکہ تنازع حل ہونے کی امید۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں پھر نیچے آ گئیں۔ برنٹ خام تیل 96.30 اور WTI 90.17 ڈالر فی بیرل پر آ گیا۔ اماراتی تیل مربن کی $91 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے ملٹری ونگ القسام کے سربراہ محمد عودہ کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے شمالی غزہ میں حملہ کر کے محمد عودہ کو شہید کیا گیا۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی دعوے کی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں عدنان اسپتال میں اے سی کی گیس لیک ہونے سے 8 نومولود جاں بحق۔ جاں بحق ہونے والے تمام بچے پوسٹ آپریٹو وارڈ میں تھے۔ پولیس کے مطابق اسپتال انتظامیہ سے تفتیش جاری ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔